All right, a very good evening to all of you. Today we are having a lecture on memory management. Now, let me just tell you that there would be two lectures, and in that we will be able to cover all the things, and there would be a separate lecture where we will be solving all the previous year questions in a very short span of time. So, in today's lecture, we will be just understanding what is memory management, how we are going to deal with it, and how are what would be the roadmap of doing all these things, like how you're going to move from memory to virtual memory, and then the concepts of paging and segmentation come into the picture. So let's just first talk about what is memory. What is memory? Memory होता क्या है? देखिए क्लास, मेमोरी क्या है? एवरीवन इज अवेयर दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम डेटा जिसको हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है इंट आई इज इक्वल्स टू 10, तो कंप्यूटर इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर करता है. वेरी सिंपल. सो द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 इज 1010. yes or no? And if we are considering the 32 bit, like if we are considering the 32-bit system, then the size of integer would be, size of integer is 2 bytes, that is 16 bits. And what we are doing in one memory, like one memory block is storing 1 bit. Okay, so according to this, like if we are going to do, what would be there? The representation of 10 would be then 1010. Now you know this is LSB and this is MSB, most significant bit and least significant bit, and the size of integer is 2 bytes. Okay, now the first bit is always a sign bit. It is a sign bit. Now the sign bit, if the value, the sign bit value, if it is 0, that means it is a positive integer, and if it is 1, then it is a negative integer. And what are the range of values that we can store in a memory array? That is -32768 to +32767. All right. Now what is the purpose? What is the need? What is the need for multi-programming? मल्टी प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत हमें पड़ी? देखिए क्लास, सीपीयू जो है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी भी एक्सेस कर लेता है, रजिस्टर्स भी एक्सेस करता है, कैश भी एक्सेस करता है. तो जो साइज होता है मेन मेमोरी का, इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. तो अगर हम साइज को सीपीयू से ज्यादा कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा प्रोसेसेस को लोड कर पाएंगे. सो जस्ट फॉर इंक्रीजिंग, like the increasing the degree of multi-programming means we are increasing the CPU utilization. For example, अगर हम कह रहे हैं कि अगर process का size, for example, if the process size is 4 MB, अगर 4 MB process का size है, and if the main memory size is 4 MB, okay, so the process can only reside in the main memory at any time. एक process जो है वो main memory में कभी भी हो सकता है, रखा जा सकता है. अब मान लीजिए कि जो प्रोसेस P है उसको इनपुट आउटपुट काम करने के लिए, इफ इट इज टेकिंग सम टाइम P, अगर उसको कुछ P टाइम लग रहा है, देन इनपुट आउटपुट काम करने में उसको अगर P टाइम लग रहा है, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन हम बहुत इजीली बोल सकते हैं. दैट वुड बी, व्हाट वुड बी द सीपीयू यूटिलाइजेशन? ये कुछ बेसिक्स आपको पहले पता होने चाहिए. दैट इज 1 माइनस पी. सो लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इफ पी इज 70%, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होगा? 30%. ओके, नाउ लेट्स जस्ट इंक्रीज द मेमोरी साइज टू 8 MB एंड द प्रोसेस साइज 4 MB. तो इसका मतलब क्या हुआ? अब एक साथ मेन मेमोरी के अंदर दो प्रोसेसेस हम रख सकते हैं. यस और नो? ठीक है. तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर, अगर एक प्रोसेस को इनपुट आउटपुट काम करने में, अगेन अगर इनपुट आउटपुट का काम करने के लिए उसको अगर P टाइम लग रहा है, तो CPU का यूटिलाइजेशन वुड बी कैलकुलेटेड एज, CPU utilization would be calculated as 1 minus P square. Okay, so let's just say that if P is 70%, then what would be the CPU utilization? It would be 1 minus 0.49, that is equals to 51.
0.51, that is 51%. Okay. इस बात का मतलब क्या हुआ? What I want to tell you, I want to say that CPU utilization will be increased if the memory size gets increased. अगर आप मेमोरी का साइज बढ़ा देंगे तो CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेन मेमोरी में जो रखने वाले हैं वो भी बढ़ जाएंगे. Yes or no? So therefore we can state that the CPU utilization will be increased. It will be increased if the memory size gets increased. Yes or no? Alright. Then there is a concept of fixed partitioning. एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, उसको बोला जाता है फिक्स्ड पार्टीशनिंग या फिर बोला जाता है कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन. Contiguous memory allocation. So what is it? It is a technique in which the main memory is divided into the partitions of equal or different sizes. ठीक है, तो यहाँ पर equal या फिर different sizes में हम divide कर सकते हैं. जो first partition होगा that would be always allocated for the operating system and other partitions would be used for the processes and the memories is assigned to the processes in a contiguous manner. तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पर मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस ऑफ इक्वल और different sizes. Yes or no? Okay. Here again you should be noting something that in fixed partitioning the partitions, जो partitions हैं, they cannot overlap. वो overlap नहीं होते हैं. And a process must be contiguously present in a partition. एक process जो है वो contiguously एक partition में रहना चाहिए for the execution. Okay. So these are certain advantages of fixed partitioning, but there are certain disadvantages why we do not prefer fixed partitioning, because it suffers from internal fragmentation. It suffers from internal fragmentation. Internal fragmentation का मतलब ये हुआ class that if the size of the process is lesser than the total size of the partition, मान लीजिए total size जो है partition का, if that is let's say 3 MB, और हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो साइज है प्रोसेस का वो उससे कम है, लेट्स से दैट इट इज ऑफ 1 MB, तो क्या हो रहा है? सम साइज ऑफ द पार्टीशन इज गेटिंग वेस्टेड. ये वेस्ट हो गया एंड इट रिमेन्स अनयूज्ड. This is the wastage of the memory and we call it as internal fragmentation. Second, it suffers from external fragmentation. It suffers from external fragmentation. External fragmentation का मतलब ये है that the total unused space of various partitions, मान लीजिए एक प्रोसेस आया, उस प्रोसेस में let's say 2 MB जो है ये unused है. नेक्स्ट आप मान लीजिए एक और आया है प्रोसेस, उसने कुछ स्पेस लिया, यहाँ पर 5 MB जो है ये भी unused है. मतलब it's a whole, it's a free space available, but you cannot use these partitions cannot be used to load the processes even though the space is available. क्यों हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है जो कि 7 MB का है, so we can always combine these things, like we can combine these memory spaces and we can load this 7 MB process, which is not possible. हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर fixed partitioning में, क्योंकि ये contiguous way में processes को रखता है. ठीक है. So despite of the fact that there is sufficient space available to load the process will not be loaded. This is something known as external fragmentation. Next, कुछ drawback आप देखें यहाँ पर, वो है limitation on the size of process. इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो प्रोसेस का साइज है उसको हमें एक लिमिटेशन देना पड़ेगा. लाइक इफ द प्रोसेस साइज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द मैक्सिमम साइज पार्टीशन, देन दैट प्रोसेस कैन नॉट बी लोडेड. उसको हम लोड नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ
मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो लेस। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का क्लास सिंपली मतलब ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो आप एक साथ मतलब इट मीन्स, लिख लीजिए इसको, इट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी लोडेड, जो आप लोड कर सकते हैं, into the memory, that can be loaded into the memory at the same time। तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या होता है, डिग्री जो है मल्टी प्रोग्रामिंग की बहुत फिक्स्ड और बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो साइज है पार्टीशन का वो ऑलरेडी बहुत छोटा है और आप उसको वेरी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोसेसेस। ठीक है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग नोन एज फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्लास। सो इट सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट एक चीज होती है डायनेमिक पार्टीशनिंग। क्या होती है? डायनेमिक पार्टीशनिंग। नाउ डायनेमिक पार्टीशनिंग ट्राइज टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉज्ड बाय फिक्स्ड पार्टीशनिंग। तो इस टेक्निक में होता क्या है, जो पार्टीशन का साइज है आप उसको इनिशियली डिक्लेयर नहीं करते हैं, बट द पार्टीशन साइज इज डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोसेस लोडिंग। जैसे ही प्रोसेस आ रहा है उसको जितनी जरूरत है उतने हिसाब का आपने उसको एक पार्टीशन दे दिया। क्या मतलब उतने हिसाब का? मान लीजिए इफ दिस इज let's say this is a memory space, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, so this is the partition for OS। मान लीजिए प्रोसेस 1 आया है 5 MB का, प्रोसेस 2 आया है 2 MB का, प्रोसेस 3 आया है 3 MB का, एंड प्रोसेस 4 जो है वो है 4 MB का। ओके, सो वी हैव 4 पार्टीशंस फॉर दीज 4 प्रोसेसेस। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो प्रोसेस का साइज होगा दैट वुड बी इक्वल टू द पार्टीशन साइज, बिकॉज दैट वी आर डिसाइडिंग एंड वी आर एलोकेटिंग डायनेमिकली। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस तो डेफिनेटली हैं ओवर द फिक्स्ड पार्टीशनिंग। तो वो क्या एडवांटेजेस हैं तो वो आप देख सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं। पहला एडवांटेज तो ये हुआ, the first advantage would be that there is no internal fragmentation। यहाँ पर कोई internal fragmentation नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? because there is not any unused remaining space। partition को जितना आप चाहिए उतना ही दे रहे हो, तो कोई space बच रहा नहीं बच रहा, तो internal fragmentation नहीं है। then there is no limitation, कोई limitation नहीं है on the size of the process। प्रोसेस का जितना भी साइज हो हम उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं। थर्ड, डिग्री जो है ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, नाउ दैट इज ऑल्सो डायनेमिक, वो भी डायनेमिक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई अनयूज्ड स्पेस है ही नहीं, दैट मीन्स वी कैन लोड मोर प्रोसेसेस इन द मेमोरी एट द सेम टाइम। ऑलराइट, सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस क्या है? इट स्टिल सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ये एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन से सफर करेगा। इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेस है। प्रोसेस 1 जो है वो 1 MB का है, प्रोसेस 2 जो है वो 3 MB का है, प्रोसेस 3 जो है वो 1 MB का है, और उनको हमने उनके रिस्पेक्टिव पार्टीशंस में लोड कर दिया है। ठीक है, अब ये हुआ आफ्टर सम टाइम, लेट्स जस्ट से दैट प्रोसेस 1 गॉट कंप्लीटेड और वो अपना स्पेस जो है वो फ्री कर कर चले जाता है। ठीक है, लाइकवाइज प्रोसेस 3 भी अपना स्पेस जो है वो फ्री करके चला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने अनयूज्ड पार्टीशंस हैं? 2 अनयूज्ड पार्टीशंस, यस और नो? ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक प्रोसेस आ रहा है एंड इफ वी वांट टू लोड इट एंड इट्स अ 2 MB प्रोसेस। ठीक है, तो हम उसको लोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी जो मेमोरी है वो कॉन्टिग्यूसली एलोकेटेड नहीं हुई है। तो ये रूल ये बोलता है कि जो प्रोसेस है वो कॉन्टिग्यूसली प्रेजेंट होना चाहिए मेन मेमोरी में, तभी वो एग्जीक्यूट होंगे प्रोसेस, अदरवाइज नहीं होंगे। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो यहाँ पर अभी भी है, बिकॉज वी कैन नॉट कंबाइन द मेमोरी स्पेसेस जस्ट टू अलॉट और गिव स्पेस टू सम अदर प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। तो क्या किया जाएगा? वी नीड टू चेंज दिस रूल, हमें रूल चेंज करना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज दिस रूल टू अवॉइड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाने के लिए हमें ये रूल चेंज करना पड़ेगा। रूल चेंज करने में हमें एक हेल्प करता है एक कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज
कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या बोलता है? कॉम्पैक्शन ये बोलता है कि आप सारे के सारे पार्टीशंस को, जो भी कॉन्टिग्युअस है, उन सबको आप एक साथ लेकर आ सकते हैं। सो इन कॉम्पैक्शन ऑल द फ्री पार्टीशंस, सारे के सारे फ्री पार्टीशंस जो हैं, दे आर मेड कॉन्टिग्युअस, उनको हम कॉन्टिग्युअस एक साथ ले आते हैं। एंड ऑल द लोडेड पार्टीशंस, और सारे के सारे लोडेड पार्टीशंस आर ब्रॉट टुगेदर, उनको हम एक साथ लेकर आ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करने से हम बड़े प्रोसेसेस को भी डेफिनेटली स्टोर कर पाएंगे। यस और नो, हम बड़े से प्रोसेस को भी स्टोर कर पाएंगे और जो पार्टीशंस है वो मर्ज कर पाएंगे, और इस प्रोसेस को हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज नोन एज डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रैगमेंटेशन, ओके। तो हम ये काम डेफिनेटली कर सकते हैं, हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा, लेकिन अभी भी कॉम्पैक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है? कॉम्पैक्शन के साथ क्लास ये प्रॉब्लम है कि जो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इट गेट्स डिक्रीज्ड इन केस ऑफ कॉम्पैक्शन। क्यों? क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ टाइम इज इन्वेस्टेड, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है फॉर दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को करने में बहुत टाइम लग जाता है, एंड द सीपीयू रिमेन आइडल फॉर ऑल दिस टाइम, और इस पूरे वक्त के लिए सीपीयू बैठा रहता है। सो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कॉम्पैक्शन कैन अवॉइड, ये भी लिख देते हैं, डिस्पाइट of the fact that compaction avoids external fragmentation, it makes the system inefficient. ये सिस्टम को inefficient बनाता है। Alright, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए थे। Next thing that you should be knowing and we are going to do today is the partitioning algorithms. इसके ऊपर surely एक question आना है क्लास, partitioning algorithms के ऊपर in your examination। तो कुछ क्लास पार्टीशन करने के algorithms है कि हम कैसे पार्टीशन करेंगे। The first one is the first fit algo। क्या है इसका नाम? first fit algo। first fit algo क्या करता है क्लास? ये पूरा आपका जो लिंक लिस्ट है, it scans the link list, आपके पूरे लिंक लिस्ट को ये स्कैन करेगा, and whenever it finds the first big enough hole to store a process, वो स्कैनिंग को स्टॉप कर देगा, ठीक है, और वो उस प्रोसेस को लोड कर देगा into that hole, ठीक है, process is loaded, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? one partition will be a hole and other partitions will be storing the process। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ये बहुत सिंपल एल्गो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये जो है ये आपको बिगर होल्स देती है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। सो ये आप लिख लीजिए, इट प्रोड्यूसेस बिगर होल्स एज कंपेयर्ड टू अदर एल्गोरिथम्स। ओके, नेक्स्ट एल्गो क्या बोलता है? नेक्स्ट एल्गो का नाम है क्लास नेक्स्ट फिट एल्गो। नेक्स्ट फिट एल्गो भी फर्स्ट फिट के सिमिलरली है, बट देयर इज एक्सेप्शन ओवर हेयर। नेक्स्ट फिट जो है ये पूरा का पूरा लिंक लिस्ट जो है उसको स्कैन करेगा फ्रॉम द नोड वेयर इट प्रीवियसली एलोकेटेड अ होल, ठीक है। जो पहले मान लीजिए एक लिंक लिस्ट है, और मान लीजिए फर्स्ट उसको यहाँ पर एक प्रोसेस उसने यहाँ पर लोड कर दिया, उसके बाद वो ये वाला जो एरिया है उसको ये फिर से स्कैन नहीं करेगी, इसके फर्दर मूव करती है नेक्स्ट फिट। So it doesn't scan the whole list, it starts scanning the list from the next node. So what is the idea behind it? The idea is that the list has been already scanned. ये सोचता है कि इतना लिस्ट तो मेरा ऑलरेडी स्कैन हो ही चुका है, तो प्रोबेबिलिटी एक होल मिलने की बाकी पोर्शन में ज्यादा है, तो जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ये वहां पर स्कैनिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बट स्टिल वी आर गोइंग टू से दैट नेक्स्ट फिट इज डेफिनेटली नॉट बेटर देन फर्स्ट फिट।
आपको अभी एक्सपेरिमेंट्स भी आप कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि फिर भी फर्स्ट फिट बेटर है। नेक्स्ट इज द बेस्ट फिट एल्गो। बेस्ट फिट एल्गो क्या करना चाहता है क्लास? इट इज गोइंग टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट होल पॉसिबल। ये स्मॉलेस्ट होल पॉसिबल ढूंढता है इन द लिस्ट टू अकोमोडेट द साइज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। नंबर वन, ये स्लोअर है। क्यों स्लोअर है? क्योंकि इसको पूरा का पूरा लिस्ट जो है बार बार स्कैन करना पड़ता है। किस लिए? टू फाइंड, सो it scans the entire list every time and tries to find out the smallest hole. इस वजह से इसको टाइम ज़्यादा लगता है। And due to the fact that there is a difference between the hole size and the process size is very small, बहुत कम फर्क होता है। जो होल्स आप यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। होल्स आर स्मॉलर। तो स्मॉलर होल होने से क्या फायदा हुआ? हम कोई प्रोसेस को तो लोड नहीं कर पाएंगे, सो दे अगेन रिमेन यूजलेस होल्स। तो ये यूजलेस होल्स रहते हैं। सो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द नेम ऑफ द एल्गो इज बेस्ट फिट, इट इज स्टिल नॉट बेस्ट फिट अमंग ऑल। ओके, नेक्स्ट। अभी तक हमने देखा बेस्ट फिट, जो बेस्ट जो अगर आप बोलेंगे एल्गोरिथम, वो अभी तक फर्स्ट फिट ही है। Next come worst fit algo. Worst fit algo scans the entire list every time and it tries to find out the biggest hole. Okay, so despite of the fact that it produces, अब इससे क्या होगा? ये larger holes देगा। तो लार्जर होल्स होने से तो फायदा है कि हम बाकी प्रोसेसेस को लोड कर पाएंगे, बट स्टिल इट इज नॉट अ बेटर अप्रोच ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज स्लोअर, क्योंकि ये स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि इसको एवरी टाइम लिस्ट को बार बार क्या करना पड़ता है? इट नीड्स टू कीप स्कैनिंग, सो इट कीप्स स्कैनिंग द लिस्ट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज क्लास क्विक फिट। क्विक फिट एल्गो। क्विक फिट एल्गो ये बोलता है दैट इट इज गोइंग टू मेंटेन डिफरेंट लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड साइजेस। ये क्या करता है क्लास? इट मेंटेन्स डिफरेंट लिस्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड साइजेस। जो भी बार बार यूज हो रहा है, ये उसकी एक सेपरेट लिस्ट बना लेते हैं, जबकि ये प्रैक्टिकली सजेस्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। सो वी कैन से दैट द फर्स्ट फिट इज द बेस्ट एल्गो अमंग ऑल। तो बेस्ट एल्गो कौन सा हुआ क्लास? दैट इज द फर्स्ट फिट एल्गो। क्यों फर्स्ट फिट एल्गो हुआ? क्योंकि इसमें टाइम जो है कम लगता है। देन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द bigger holes and that we can use to load other processes and it is easy to implement. All right, तो ये सारे reasons के वजह से first fit is the best among all. All right, next class एक छोटा सा question कर लेते हैं, पूछा गया है एक बार पेपर में, so let's just discuss this question. Question ये था, process के कुछ requests है। Process requests are given as 25k, 50k, 100k, 75k. Okay, you have to determine the algorithm which can optimally satisfy this requirement. Okay, and this is the area. This is 50k, then we have 75k, 150k, here we have a process 175k, 300k, and in the options they have given first fit algorithm, best fit, neither of the two, both of them. So here we can see how many partitions do we have in the memory class? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 partitions, and 3 partitions are already having the processes, and we have 2 holes, 1 hole, and this is the second hole. So the first requirement, हमारी class जो first requirement है process की, वो क्या है? 25k. 25k. And फर्स्ट फिट क्या बोलता है हमें? दैट द एल्गो इज गोइंग टू स्कैन द इंटायर लिस्ट। उसको जैसे ही फर्स्ट होल मिलता है ये उसमें रख लेगा। दैट मीन्स जब उसके पास 25k आ रहा है, what would be the scenario? If here there is 50k and here 25k would be used and we are left with 50k hole, then we have 150k process, 175k and we have 300k. Okay,
देन कम्स 50K रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या आया 50K, तो 50K तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अलॉट कर सकते हैं फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर, सो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन दिस सिनेरियो। नेक्स्ट कम्स 100K। नेक्स्ट क्या आता है क्लास 100K। तो जब 100K आ रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पर लोड कर देंगे एंड देन देयर वुड बी 75K दैट वुड बी लेफ्ट, and the last request is 75K only, and then that last request would be served 75K इसमें चला जाएगा। So using first fit algorithm we have fulfilled the entire request optimally and there is no useless space that is remaining. Okay, so you can say that using first fit algorithm we have fulfilled the entire request optimally and no useless spaces remaining. Okay, then in the second option there was best fit algorithm. Best fit algorithm. All right, so best fit algorithm, what it does, it needs to scan the whole list and then it finds and the best whole and then accordingly it serves it. So for, supposedly if there is 25K requirement, memory space, this was 50K, then there was 75K, 150K, 175K and 300K is allocated. So the first request is 25K. So to allocate 25K using the best fit, it is going to scan the whole list. ये पूरे list को scan कर रहा है and it finds that 75K partition is free and it is the smallest among all also. So it accommodates over here. यहाँ पर accommodate हो जाएगा 25 and we are left with 50K. Then second comes 50K। तो जब सेकेंड जो है वो 50K अगर है तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पर अलोकेट हो जाएगा एंड एग्जैक्ट मैच हो गया, सो देयरफॉर इट वुड बी एलोकेटेड। नेक्स्ट क्या आ रहा है इसके बाद 100K। 100K again it is going to search and it is going to find that the smallest among these and there is only one space only that is left, that is 175 and it is quite close to 175K। तो क्या होगा, ये 100K यहाँ पर allocate कर देंगे and we are left with 75K and the last requirement is 75K only, so that would be allocated. Okay, so what do we infer from here? That by following both the algorithms we have noticed that both the algorithms perform similar to most of the extent in both the cases. Both can satisfy the need of the process, but however best fit scans a list again and again and it takes lot of time. Therefore we are going to say that first fit it's performing the function in an optimal manner. Okay, so again we are going to say कि first fit ही better है apart from best fit. All right, okay, after this class we have a topic on paging. इसके बाद हमें करना है paging. Okay, let's just get started with it. Paging. पेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अभी आई एम नॉट श्योर, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट होएगा, लेकिन पेजिंग जो है इसको बहुत ध्यान से समझना है हमें। सो इफ विल बी needing another class, 2 classes that we will be providing, we are arranging you the classes for you, no problem in that, and there would be a complete session of 1 or 1.5 hour or in solving all these questions which would be covering entire concepts up till here. सो सबसे पहले पेजिंग में तो हमें ये समझना है कि ज़रूरत क्या है पेजिंग की। व्हाट इज़ द नीड फॉर पेजिंग, पेजिंग की ज़रूरत क्या है। तो अगर आपको ध्यान है डायनेमिक पार्टीशनिंग का एक डिसएडवांटेज था। क्या डिसएडवांटेज था डायनेमिक पार्टीशनिंग का? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। Although हमने ये पढ़ा that it could be removed by compaction, but compaction is making the system inefficient. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डायनेमिक और फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा and that is paging. उसको क्या बोला जाता है, paging. So what is the need for paging? So we need to have some kind of mechanism जो क्या करे, which can store one process at different locations of the memory. So paging helps in doing that, helps in storing one process at
डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द मेमोरी, मेमोरी के डिफरेंट लोकेशंस में स्टोर करने में हेल्प करता है। तो जो आइडिया है पेजिंग का वो ये है दैट इट इज गोइंग टू डिवाइड द प्रोसेस को ये डिवाइड करेगा इनटू पेजेस सो दैट वी कैन स्टोर देम इन द डिफरेंट लोकेशंस, हम उनको डिफरेंट लोकेशंस में स्टोर कर पाए। तो पेजिंग इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड टू रिट्रीव द प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। तो मेन आइडिया क्या है कि ये पेजेस को ये प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड करेगा, और मेमोरी को भी हमें, इफ द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस, so the memory would also be divided into frames, okay, and one page of the process will be stored in one of the frames, ठीक है, एक पेज को हम कोई भी एक फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं और पेजेस को हम डिफरेंट लोकेशंस में स्टोर कर सकते हैं। सो बट जो प्रायोरिटी हम यहाँ पर देंगे अगेन दैट इज गिवन टू द कॉन्टिग्यूअस फ्रेम्स ओनली, okay, or the contiguous holes only. So pages of the processes are brought into the main memory only when they are required, otherwise they reside in secondary storage. So if you are going to consider this fact that the pages are mapped to the frames, that is known as paging. और आपको ध्यान रखना है कि पेज का जो साइज है दैट मस्ट बी इक्वल टू द फ्रेम साइज, नहीं तो कैसे एक पेज को एक फ्रेम में आप रखेंगे, ओके, इट इज नॉट possible in that case, okay. So these things you should be knowing and it should be very much clear to you people, okay. Further again मैं बोल रही हूँ कि प्रायोरिटी हम यहाँ पर कॉन्टिग्यूअस को ही देंगे, okay. So further there is a purpose of MMU, जो हम पढ़ रहे हैं आज क्लास वो पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो पर्पस क्या होता है पहले हम ये पढ़ लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का पर्पस ये होता है कि इसको एक लॉजिकल एड्रेस को एक फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? दिस इज बीइंग जनरेटेड बाय द सीपीयू, दिस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू फॉर एवरी पेज, हर एक पेज के लिए ये जनरेट होता है। वाइल द फिजिकल एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस, ये एक्चुअल एड्रेस होता है फ्रेम का, वेयर ईच पेज विल बी स्टोर्ड, जहां पर हर एक पेज को हम स्टोर कर सकते हैं। जो लॉजिकल एड्रेस है क्लास, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। लॉजिकल एड्रेस, वन इज द पेज नंबर एंड अनदर वन इज द पेज ऑफसेट, ओके। सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है ये कन्वर्ट करता है इस पेज नंबर को किस में, उसके पर्टिकुलर फ्रेम नंबर में। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू जो आपको समझ में आना चाहिए वो ये है कि बाइनरी एड्रेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। इफ यू आर यूजिंग वन बिट, सो दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट 2 raised to the power 1, that is equals to 2 memory locations. If we are using 2 bits, that means we can represent 2 raised to the power 2, that is 4 memory locations. If we are using 3 bits, that means we are representing 2 raised to the power 3, that is 8 memory locations, like that. तो कहने का मतलब ये है, अगर आप मुझसे जनरलाइज्ड में पूछेंगे, सो वी हैव 2 raised to the power n memory locations, all right. और जो ये n bits होती है ना क्लास, these n bits could be divided into 2 parts. एक होता है k bits and another one is nothing but n minus k bits. जो एक k bits होती है ये हमें बताता है पेज नंबर। हर एक पेज में जब आप जाएंगे क्लास, उसका एक पेज नंबर होता है, उसके लिए कुछ k bits एसोसिएटेड हैं। और अगर आपको पेज का साइज निकालना है, साइज ऑफ द पेज, दैट इज नथिंग बट n minus k bits, okay. So we can say that 2 raised to the power n, we can represent it in this form, is actually equal to 2 raised to the power k into 2 raised to the power n minus k, all right, yes or no? So this is the representation. इसका मतलब क्या हुआ? k and k got cancel and they are equal. So they are always divided in this form, ताकि आप एक पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक पेज नंबर जाने, ठीक है। कुछ बेसिक्स हैं हम आज कर रहे हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट इज द फिजिकल, एक क्लास होता है फिजिकल एड्रेस स्पेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये क्या होता है? देखिए क्लास, फिजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है दैट इज एक्चुअली द साइज ऑफ द मेन मेमोरी। मान लीजिए इफ
द फिजिकल एड्रेस स्पेस इज 64 KB। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 raised to the power 6 KB। Now that is equals to 2 raised to the power 6 into 2 raised to the power 10 bytes। मैं bytes में convert कर रही हूँ, yes or no? That is equals to 2 raised to the power 16 bytes। Now let's consider कि हमारे पास एक word size है। क्या है? Word है और उसका size है 8 bytes। 8 bytes that means 2 raised to the power 3 bytes। इसीलिए अगर मैं physical address space निकालना चाहूँ in words, physical address space in words, so that would be equals to 2 raised to the power 16। ये देखिए अभी हमने निकाला था यहाँ पर, divided by 2 raised to the power 3, that is nothing but 2 raised to the power 13 words। okay, so therefore हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा physical address होगा ना क्लास, that is equals to 13 bits। और in general हम बोलते हैं in general it is equals to n words। तो आप फिजिकल एड्रेस निकाल सकते हैं log base to n। ऑलराइट, लाइकवाइज हमारे पास होता है क्लास लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस space, let's say if it is 128 MB, that means we can calculate it if this is 2 raised to the power 7 into 2 raised to the power 20 bytes, that is 2 raised to the power 27 bytes। If the word size is given to you as 4 bytes, so that is 2 raised to the power 2 bytes। So the logical address space in words is nothing but 2 raised to the power 27 divided by 2 raised to the power 2, that is 2 raised to the power 25 words। That means my logical address logical address is equal to 25 bits, and in general it is definitely equals to L words। So therefore logical address is equals to log base to L bits। okay, the same way, similar way। so accordingly आप ये भी समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको ये निकालने के लिए जरूर पूछता है physical address space and logical address space, and you people must be knowing these things। okay, all right class, next what do we have? Next we have the page table and page table entries। okay, and after completing this we will be moving towards the virtual memory। तो चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं पेज टेबल। देखिए पेज टेबल क्लास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो वर्चुअल मेमोरी सिस्टम यूज करता है ताकि वो मैपिंग कर सके किसके बीच में, लॉजिकल एड्रेसेस के बीच में और फिजिकल एड्रेसेस के बीच में। लॉजिकल एड्रेसेस आर जनरेटेड बाय द सीपीयू फॉर द पेजेस एंड देयरफॉर दे आर जनरली यूज्ड बाय द प्रोसेसर्स, ये तो अब आप जानते हैं। फिजिकल एड्रेसेस जो है दे आर द एक्चुअल फ्रेम एड्रेस ऑफ द मेमोरी, यस और नो। तो मान लीजिए अगर मेरे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस है m वर्ड्स, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है l वर्ड्स, पेज का मेरे पास साइज है, पेज साइज p वर्ड्स, तो मैं फिजिकल एड्रेस कैसे निकालूंगी, p वर्ड्स। then my physical address is log base to m, which is something known as m bits, हम consider कर लेते हैं, and logical address is log base to this was l, so let's just say this is l bits, and we have a page offset, और हमारे पास क्या होता है क्लास, एक पेज ऑफसेट दैट इज लॉग बेस टू p, जो पेज का साइज है उससे आप निकालेंगे, दैट इज सम p बिट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे पेज नंबर ऑफ द लॉजिकल एड्रेस टू द फ्रेम नंबर ऑफ द फिजिकल एड्रेस। लेकिन ये जो पेज ऑफसेट आपने निकाला है ना क्लास, दिस वुड रिमेन सेम इन बोथ द एड्रेसेस, ये दोनों में सेम रहता है। ठीक है, तो आप मैपिंग कैसे करेंगे क्लास, अगर आपको मैपिंग करना है तो आप मैपिंग कैसे करेंगे पेज टेबल से मेन मेमोरी में। तो देखिए सबसे पहला जब आप मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग फ्रॉम पेज टेबल टू मेन मेमोरी, सबसे पहले स्टेप है कि आप जनरेट करेंगे, देयर इज जनरेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस, जिसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास दो सेट्स होंगे, दो पार्ट्स होंगे, एक होगा पेज नंबर एंड अनदर वन इज द ऑफसेट। सेकेंड स्टेप इज स्केलिंग। स्केलिंग करने का मतलब ये है, अगर आपको एक्चुअल पेज नंबर ढूंढना है तो जो सीपीयू है वो एक पेज टेबल का बेस भी स्टोर करता है रजिस्टर में। तो ईच टाइम दैट एड्रेस इज जनरेटेड दैट वुड बी एडेड टू द पेज नंबर, यानी अगर आपको एक्चुअल लोकेशन ढूंढनी है, सो ईच टाइम
the address is generated, the value of page table base is added to the page number. किस लिए? To get the actual location of the page entry in the table. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लास स्केलिंग. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एंट्री ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बेस एड्रेस से ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, थर्ड स्टेप इज द जनरेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस. तो फिर क्या होता है, आपको जो भी फ्रेम नंबर होगा डिजायर्ड पेज का वो आप एंट्री से ढूंढ लेंगे और आपको फर्दर भी फिजिकल एड्रेस के अंदर दो पार्ट्स दिखेंगे. एक होगा फ्रेम नंबर, एक होगा फ्रेम नंबर और दूसरा जो होगा वो होगा ऑफसेट. तो ऑफसेट जो है वो तो सिमिलर होगा लॉजिकल एड्रेस, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेम नंबर से आप ढूंढ पाएंगे एक्चुअल एड्रेस. देन द लास्ट पॉइंट इज गेटिंग द एक्चुअल फ्रेम नंबर. तो एक्चुअल फ्रेम नंबर जो है, जो फ्रेम नंबर ऑफसेट आपको फिजिकल एड्रेस से मिलेगा वो आप मैप करेंगे मेन मेमोरी में ताकि आपको एक्चुअल एड्रेस मिल जाए. अब ये पूरी चीज को एक पिक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा. सपोजिटली हियर इज CPU, इट इज जनरेटिंग व्हाट, अ लॉजिकल एड्रेस जिसके अंदर क्या होगा, एक पेज नंबर है क्लास और एक क्या है, ऑफसेट है. ठीक है, यहां पर अब आप करेंगे स्केलिंग. स्केलिंग का मतलब क्या है, आपने ऐड करना है. क्या ऐड करना है, जो पेज टेबल बेस रजिस्टर की वैल्यू है. इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा आपका डिजायर्ड पेज. कहाँ मिलेगा, मेन मेमोरी में. और लेट्स से दैट इज माय डिजायर्ड फ्रेम. अब जो फ्रेम मिला आपने यहां से क्या करना है, मैपिंग करना है. क्या करना है, मैपिंग करना है. जब मैपिंग करेंगे तो आपके पास एक फ्रेम नंबर है और एक क्या है, ऑफसेट आएगा. इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल एड्रेस. ठीक है, ऑफसेट जो है आपका ये आप यहीं से डायरेक्टली ऐड कर देंगे. यू कैन ऐड द ऑफसेट टू द फिजिकल एड्रेस. ओके, और फ्रेम नंबर आपको इस फिजिकल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग में मिल गया. अकॉर्डिंगली आपने इन दोनों को जब रखा तो आपको क्या मिल गया, एक फिजिकल एड्रेस मिल गया. नाउ यू आर गेटिंग द एक्चुअल फ्रेम एड्रेस. नाउ यू आर गेटिंग व्हाट, एक्चुअल फ्रेम एड्रेस. ओके, तो वो कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा मेन मेमोरी में. ये क्या है, ये है पेज टेबल जहां पर आपने ढूंढा. एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय पेज टेबल एंट्री. ओके क्लास, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. सो अलॉन्ग विद द पेज नंबर आपको मैं एक चीज यहाँ भी बता दूं, पेज फ्रेम नंबर. तो जैसे ही आपको पेज का फ्रेम नंबर मिलता है, पेज टेबल के पास कुछ बिट्स होती हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने के लिए, दिखाने के लिए. वो बिट्स क्या होती हैं, चलो वो भी अभी कर ही लेते हैं. ठीक है, सो अलॉन्ग विद द पेज फ्रेम नंबर, द पेज टेबल also contains some bits extra for page information. वो क्या है, एक होता है क्लास कैशिंग डिसेबल्ड. कैशिंग डिसेबल्ड ये बताता है दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिसेबल द कैश फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस. इस बिट को हम यूजुअली तो 1 ही सेट करेंगे अगर मेरा कैश डिसेबल्ड है. दूसरा होता है रेफरेंस्ड. रेफरेंस्ड को भी हम 1 सेट करेंगे अगर मेरा पेज रेफर हुआ है इन द लास्ट क्लॉक साइकिल, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा. देन देयर इज मॉडिफाइड बिट. मॉडिफाइड बिट जो है ये बताएगा अगर मेरा पेज मॉडिफाई हुआ है तो, अदरवाइज इट इज 0. देन देयर इज अ प्रोटेक्शन बिट. ये सारे पेज के साथ इन्वॉल्व बिट्स हैं. प्रोटेक्शन फील्ड ये बताता है कि कितना प्रोटेक्शन आपने पेज के ऊपर लगाना है. इज इट ओनली रीड, इज इट रीड ओनली, is it write and execute, what is it, whatever it is. So we need to remember that it is not a bit, rather it is a field which can contain many bits. यहाँ पर एक bit नहीं है, it can contain many bits. Then there is present or absent. एक होता है present और absent. तो this is in the concept of demand paging. अगर हमें सारे के सारे pages नहीं चाहिए
Like all the pages doesn't need to be present in the main memory. Therefore, all the pages need to be present in the main memory will be set to 1. Otherwise, it would be set 0 if the page would be absent. ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ चीजें जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती. ऑलराइट क्लास, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है क्लास कि आप किस तरीके से साइज निकालेंगे, size of the page table. See, the page table must also be present in the main memory all the time because it has the entry for the pages. तो size अगर आपको निकालना है, so it would depend on the number of entries and the bytes stored in one entry. मान लीजिए अगर मेरे पास लॉजिकल एड्रेस है 24 बिट्स का, तो मेरा लॉजिकल एड्रेस स्पेस हो गया 2 raised to the power 24 bytes. लेट्स से मेरा पेज का जो साइज है दैट इज 4 KB, दैट इज 2 raised to the power 12 bytes, और मेरा जो पेज ऑफसेट है लेट्स से इफ दैट इज 12. सो नंबर ऑफ बिट्स मेरे कितने होंगे पेज में, नंबर ऑफ बिट्स इन अ पेज अगर पूछते हैं तो दैट वुड बी लॉजिकल एड्रेस माइनस पेज ऑफसेट. ये कुछ फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा. दैट इज 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 बिट्स. और नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ पेजेस दैट वुड बी 2 raised to the power 12. That is something known as 2 into 2 into 10 into 10. Let's say that is 4 KB. और मान लेते हैं अगर हमारे पास पेज टेबल एंट्री जो है that is of 1 byte. So therefore we can say that the size of page table is 4 KB into 1 byte. That is 4 KB itself. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक किसी का भी पेज टेबल अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं. एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग ओवर हियर ओनली कि अगर आपको एक ऑप्टिमल पेज टेबल साइज निकालना है तो उसका क्या है, हायर द पेज टेबल हायर इज ओवरहेड. जितना ज्यादा आपका पेज टेबल होता जाएगा उतना ओवरहेड आपका बढ़ता जाएगा. तो इन जनरल यू कैन copy a formula over here, you can note down a formula over here, that is that the page table size is equals to number of page entries in the page table. पेज टेबल में कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं मल्टीप्लाइड विद द साइज ऑफ वन पेज एंट्री. ठीक है क्लास, इज इट क्लियर? And I would like to tell you over here that the page table size is anti-proportional to the page size. ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पेज टेबल मतलब if you want the optimal page table size तो आपको पेज साइज को कम रखना पड़ेगा. ठीक है, all right. So with this I think I have given you the basic briefing about what is the paging concept, how we are going to understand main memory, what sort of questions would be there, that we will be telling you, what is locality of reference. ये सब कुछ बातें अभी हमने कुछ बातें कर ली हैं आज की क्लास में, कुछ और बातें हैं, उसके लिए एक सेशन और होगा. ठीक है, उस सेशन में हम क्या क्या करेंगे, उस सेशन में हम पढ़ेंगे अब वर्चुअल मेमोरी के बारे में, वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करता है. ठीक है, सो द टॉपिक्स फॉर next session would be virtual memory, how it works, then what is demand paging. Now the concept of demand paging would be there and it's very important from your exam point of view. Then how you are going to calculate the effective access time. Okay, what is locality of रेफरेंस, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. साथ साथ व्हाट इज ट्रांसलेशन लुकसाइड TLV, ट्रांसलेशन लुकसाइड बफर, ये हमने अभी करना है. इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे. नेक्स्ट पेज फॉल्ट, थ्रैशिंग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑन इन्वर्टेड पेज टेबल, फिर कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोज हैं. There are certain algos of page replacement, ये हम लोग करेंगे. And that would be all. यही मेन बेसिकली आपसे पूछा जाता है, वो algos हम डिस्कस भी करेंगे और एक छोटा सा पोर्शन हम रखेंगे सेगमेंटेशन का. ठीक है,
न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे अच्छे से. ये तो एक सेशन हो गया जस्ट टू कवर the entire memory management in a short span of time. And apart from that, एक और session होगा, one more session would be there where we will be solving only PYQs, only PYQs. So that strategy would also be there. Okay, class. So with this, I can say that this was our lecture on memory management, and I hope it is clear to you. In case if you have any doubts regarding anything or any question, if there is any question, please do let us know in the comment section. If you have liked the lecture, please do like, share, and must comment and must share. And also, class, please you can get access to the memberships. Please buy the membership. अगर आप लोग को like the examination is nearby, अगर आपको 2 महीने में 600 रुपये भी लग रहे हैं, like 299 का है या 399 के अगर कुछ लेक्चर्स हैं, तो अगर आपका पूरा पैकेज आपको 2 महीने में, तो आपको पता है एग्जाम हो रहा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एग्जाम होना ही होना है, तो आपको सारे लेक्चर्स का एक्सेस मिल रहा है. सो डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. ओके, must buy the things I am telling you. Like the recent trends, we have worked really hard. Many questions you are going to get common from what we are teaching. Okay, class. So please do like, share, and comment. Thank you.